नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। घरेलू शेयर बाजारों की अगर बात करें तो नवंबर की सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में तेज रैली आई थी। बॉन्ड यील्ड में भी उछाल दिखा गया। हालांकि गिफ्ट निफ्टी इस वक्त सपाट दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जो ग्लोबल बाजारों से संकेत हैं और अमेरिकी जो राष्ट्रपति चुनाव है उसकी जो नतीजे किस तरह से बाजारों पर असर डालेंगे, इस पर रहेगी सबकी नजर। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस पर। आयकर विभाग करेगा फर्जी रिफंड दावों की जांच। नए दिशा निर्देश जारी। सामूहिक रूप से रिटर्न दाखिल कराने वाले नौकरी पेशा लोगों की होगी जांच। स्मार्टफोन से अब हिंदू आस्था का मान रहे हैं लोग। डिजिटल उदय। धार्मिक स्टार्टअप्स के निवेश में एक साल में 10 गुना की बढ़ोतरी। दर्शन से पूजा हुई अब ऑनलाइन। दिवाली के बाद आईपीओ मार्केट में होगी निवेशकों की धूम। स्विगी, नेवा, बूपा समेत 4 कंपनियां जुटाएंगी 18,534 करोड़ रुपए। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन, जैसा कि सपाट कारोबार की बात गिफ्ट निफ्टी की हो रही थी, उसी के ही स्तर पर खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 550 अंक की गिरावट के साथ और 79,172 पर निफ्टी 24,133 पर कर रहा है कारोबार। इन तमाम प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और इकोनॉमी टुडे को आगे बढ़ाने से पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का जो 7वां सत्र है वो दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है, जहां केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जो है वो इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। Solar energy contributed 5.5 of the global percent of the global power, with its role in the energy mix expanding rapidly. The rapid growth is fueled by the record-breaking investments. Global solar investments have grown from 144 billion in 2018 to 393 US billion dollars in 2023 and are expected to reach 500 billion dollars by the end of 2024. These investments are not only adding the new capacity but are also driving down the cost of energy from the solar worldwide. Today, the solar power has become the most affordable source of the electricity in the many regions, even surpassing the coal and gas. This cost effectiveness is fueling a global surge in the solar ambitions, with the several countries emerging as the front runners in the field. Countries like United States, with more than 130 gigawatt of the installed solar capacity, and regions like European Union, Germany, Spain collectively contribute over 250 gigawatt of the solar capacity, are also making the good progress. It gives me the immense pride that India is also swiftly advancing its renewable energy capabilities. India's journey is one of the bold vision and the relentless progress. Under India's Prime Minister Shri Narendra Modi's leadership, India has set ambitious renewable energy targets and achieved the remarkable milestone along the way. Last month, India reached an impressive 90 gigawatt of installed solar capacity, moving steadily forward towards its broader goal of 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030. India is also setting up its sights on new horizon with a target to produce 5 million metric tons of the green hydrogen by 2030, supported by 125 gigawatt of renewable energy capacity. We have approved 50 solar parks with a total capacity of nearly 37.5 gigawatt and identified potential offshore wind energy sites to reach our
30 gigawatt goal by 2030. India's Union budget for 24-25 reflects this commitment with a 110% increase in the funding for the solar power projects and targeted support for the initiatives like PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. This, along with the exemption of the critical minerals imports, underscore our resolve to lead the solar innovation. ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का ये 7वां सत्र था जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इस वक्त संबोधन दे रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है बजट में भी इस पूरे क्षेत्र में लगातार फंड्स को लेकर बढ़ोतरी की गई है और सूर्य घर योजना की अगर हम बात करें, तमाम ऐसी योजनाएं जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आगे बढ़ाती हैं उस पर सरकार का फोकस है। लेकिन अब फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं कि ये जो पूरा हफ्ता है तो बाजार यानी दलाल स्ट्रीट के लिए इस हफ्ते के अहम ट्रिगर्स क्या रहने वाले हैं। पहला ट्रिगर, अमेरिका में जो 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव है उस पर बाजारों की नजर रहने वाली है। साथ ही इसी के मद्देनजर फेडरल रिजर्व ब्याज दर पर अपना निर्णय, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। एफपीआई जो कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं या फिर हम बात करें डीआईआई अभी न्यूट्रल हैं, लेकिन अगर 5 नवंबर को जो नतीजे आते हैं उसके बाद क्या स्टांस आता है ये देखना होगा। घरेलू कंपनियों के तिमाही नतीजे भी इस सप्ताह शेयर बाजार की दिशा और चाल को तय करने वाले हैं। साथ ही हम बात करें आईपीओस की, जिसका जिक्र हमने अपनी टॉप लाइन में भी किया था, तो आईपीओस की वजह से भी हम मान सकते हैं कि बाजार गुलजार होने वाला है। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो ये जो कीमतें हैं वो भी प्रभावित करेंगी और राष्ट्रपति चुनाव के अलावा अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े, पीएमआई डेटा और बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या निर्णय देता है, एक पैकेज दिया जाता है इंग्लैंड को, उस पर भी रहेगी हम सबकी निगाहें। तो ये अहम ट्रिगर्स जो दशा और दिशा तय कर सकते हैं बाजार की। लेकिन आइए अब सीधे रुख करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी के जो शुरुआती इंडिकेटर्स थे, जब गिफ्ट निफ्टी खुला था वो किन स्तरों पर खुला था। तो गिफ्ट निफ्टी जैसे कि सपाट न्यूट्रल कारोबार करता हुआ 24,327 का लेवल। वहीं रुख करते हैं कि सेंसेक्स का जो ओपनिंग काउंटर था वो 79,415, वहीं 308 अंकों की गिरावट यहाँ नजर आ रही है। बाय ऑन डिप का कॉल यहाँ लिया जा सकता है। वहीं बात करते हैं अगर निफ्टी की, तो निफ्टी भी गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी का जो ओपनिंग काउंटर है वो भी इस वक्त 24,000 के आसपास का लेवल और 170 अंकों के आसपास की यहाँ पर हम गिरावट देख सकते हैं। लेकिन वो कौन से स्टॉक्स हैं जो इस गिरावट के पूरे दौर में भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं शेयर बाजार में, यानी कि टॉप गेनर्स के चार्ट पर एक नज़र डालते हैं। टॉप गेनर्स एमएनएम, टेक महिंद्रा, सिप्ला, एचसीएल टेक, आयशा मोटर्स, यानी कि 2 दिग्गज बड़े काउंटर्स जब हम बात करते हैं ऑटो इंडस्ट्री के, और एक डिफेंसिव यानी कि सिप्ला फार्मा से, और साथ ही साथ आईटी इंडस्ट्री टेक महिंद्रा चार्ट को लीड करता हुआ। लेकिन लूजर्स पैक में कहाँ मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है, कहाँ दबाव ज़्यादा, उस पर भी एक नज़र। बजाज ऑटो, सन फार्मा, इन्फोसिस, ट्रेंड, पावरग्रिड, यानी एक पावर सेक्टर से जुड़ा स्टॉक, साथ ही साथ बजाज ऑटो चार्ट को लीड करता हुआ यहाँ पर 3% से ज़्यादा की जो गिरावट है वो नज़र आ रही है सन फार्मा और इन्फोसिस। तो इन तमाम स्टॉक्स पे बाय ऑन डिप का कॉल। और आइए अब रुख करते हैं इसके बाद कुछ अहम आर्थिक खबरों का जो कि आपसे ही जुड़ी हुई हैं, और बात करते हैं निर्यात की, जहां से एक अच्छी खबर देश के लिए सामने आई। भारत से दूसरे देशों में भेजे जाने वाले जो कुछ सामान हैं, जैसे पेट्रोलियम है, साथ ही साथ जेम्स और ज्वेलरी, कृषि उत्पाद की जो मात्रा है उसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई। और इन तीनों के अलावा कई और प्रमुख जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। भारत 5 साल में तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना। 2018 से 2023 के दौरान जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट है उसमें डबल डिजिट की तेज़ी आई, और कई और क्षेत्रों में भी भारत का अगर हम एक्सपोर्ट सेक्टर देखें तो वो तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में इसने खास तौर पर विशेष रूप से पेट्रोलियम, ज्वेलरी, कृषि, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और ख़ास तौर पे चीनी में जो वैश्विक बाज़ारों में अपनी उपस्थिति को दर्ज किया, जिससे निर्यात में बढ़ोतरी हुई। तो 2018 से 2023 के दौरान भारत के निर्यात में जिन क्षेत्रों में वृद्धि हुई उनमें हम बिजली के सामान को इंक्लूड कर सकते हैं, न्यूमैटिक टायर्स हैं,
नल वॉल्व्स हैं, सेमीकंडक्टर जिसका एक हब बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। और मंत्रालय के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2023 में पेट्रोलियम निर्यात 84 अरब डॉलर के पार गया और ये आंकड़े ये बताते हैं कि 2018 में 5वें स्थान के मुकाबले अब भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। और यही वजह है जो अगली खबर, क्योंकि ये निर्यात से जुड़ी एक पॉजिटिव और गुड न्यूज़ थी, जो अगली खबर है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। भाई आपका एक्सपोर्ट अगर अच्छा है तो सीधी सी बात है कि भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन रहा है और अब भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। IMF के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में 5वां स्थान हासिल करने के लिए यूके को पीछे छोड़ने के बाद भारत वित्त वर्ष 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल करने के लिए जापान की जगह ले लेगा। IMF ने अनुमान लगाया कि अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP बढ़कर 4,340 बिलियन डॉलर हो जाएगी और इसमें जो तमाम प्रमुख 8 इंडिकेटर्स हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट, इंडस्ट्री, IP के आंकड़े प्रमुख योगदानकर्ता साबित होंगे। और आइए अब बात करते हैं ADB बैंक की। तो ADB बैंक ने, यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने भारत की ओर से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो बायोफ्यूल जैसे पेट्रोलियम पर सब्सिडी कम करने और कोयले पर सेस लगाने के कदम की हम मान सकते हैं कि प्रशंसा की है, सराहना की है। और इसमें एशिया पैसिफिक की ओर से जारी जो क्लाइमेट रिपोर्ट है उसके अनुसार खुदरा मूल्य की जो टैक्स दरें हैं, जिसमें चुनिंदा पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी जैसे 3 प्रमुख बिंदुओं पर संतुलन करके भारत तेल गैस क्षेत्र में अपनी राजकोषीय सब्सिडी को 85% कम करने में सक्षम रहा। और अब ये जो सब्सिडी है वो 2013 के 25 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2023 में कम होकर 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर पर आ गई। तो 2010 से 2017 तक कोयले के उत्पादन और आयात पर सेस लगाया गया। इसका 30% जो है वो राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष में भेजा गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये हुआ कि स्वच्छ ऊर्जा की जो परियोजनाएं हैं उनके अनुसंधान यानी कि डेवलपमेंट और रिसर्च को समर्थन मिला। ADB ने ये भी माना कि सेस 2010 से 2017 के दौरान जो नवीकरणीय ऊर्जा का मंत्रालय है उसके बजट को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कोयले पर जो सेस लगाया गया इस कदम की सराहना की गई क्योंकि पर्यावरण के लिहाज से ये अहम कदम माना गया है। तो ये तमाम प्रमुख आर्थिक खबरें थी, ये रही हमारी पॉजिटिव खबरें। लेकिन आइए अब सीधे रुक करते हैं आज के फोकस का इकोनॉमी टुडे में। तो बात करते हैं आज के फोकस की, जहां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो कितना अहम हो जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं वो नंबर्स बहुत अहम हैं। वो नंबर्स इशारा कर रहे हैं कि अभी त्योहारी सीज़न जो गया है, यानी कि अगर अक्टूबर सीरीज़ की हम बात करें जिसके नंबर्स अभी कुछ ही देर में आप वीडियो वॉल पर देखेंगे, तो ये जो नंबर्स हैं ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो सेगमेंट है, जब हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, तो उस लिहाज से बहुत अहम साबित हुए हैं। आखिरकार ये अहम साबित क्यों हुए हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूम या हम गेम चेंजर के तौर पर देखें तो कैसे मिल रहा है? ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि त्योहारी सीज़न की अगर हम बात करें तो इस दौरान इलेक्ट्रिकल जो दोपहिया वाहनों की जो बिक्री है वो 85% बढ़ी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जब हम जिक्र करते हैं, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं इस पूरे सेक्टर के लिए। साथ ही 1.3 लाख से ज़्यादा जो EV दोपहिया वाहन है, यानी कि जो 2 व्हीलर सेगमेंट है, वो ये पूरा गेम चेंजर साबित हुआ है जब हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं। और ये कुल 10 महीने का जो है वो आंकड़ा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो। और
पिछले वर्ष ये आंकड़ा जो था वो 75,000 के आसपास 164 यूनिट्स का रहा, लेकिन लगातार आप देखिए कि इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और ये उछाल ये दर्शाता है कि लोगों का जो रुझान है वो अब इलेक्ट्रिकल वाहनों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि इलेक्ट्रिकल वाहन क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट हैं और पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, इसलिए लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ता हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह है कि इस बार के बजट में भी हमने इस सेक्टर के लिए जो अनुमान दिया गया था उसमें बढ़ोतरी देखी गई, यानी कि बजटीय आवंटन में 2024 के आप देखिए सिर्फ पहले ही 10 महीने हैं जहाँ 9,54,164 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। और इसमें सबसे बड़ा आप देखेंगे अगला पॉइंटर ये है कि जो नॉर्मल बाइक्स है ना उनको टक्कर क्या दे रही हैं ये जो ई स्कूटीज़ हैं। और ई स्कूटीज़ अपने आप में एक स्टाइल स्टेटमेंट भी हैं और इनकी मांग में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। मांग में तेज़ी से बढ़ोतरी क्यों हुई इसलिए कि इसकी जो माइलेज है वो ज़्यादा है और ईंधन का जो खर्च है उससे आपकी जेब पर भी असर नहीं पड़ता। और ये पसंदीदा किसकी है, सबसे ज़्यादा टारगेट इसका ऑडियंस हम क्या मानते हैं, ऑफिस वर्कर्स और महिलाओं के लिए ई स्कूटी को वो तवज्जो देती हैं स्टाइल स्टेटमेंट के लिहाज से और जो तमाम हमने अभी आपको इसकी खूबियां गिनवाई। और ईवी सेगमेंट अगर हम देखें तो लबोलुबाब यही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। और अगला अब जो कारक है जो ऑटो सेक्टर को एक बूस्टर डोज देगा वो है शादियों का मौसम, हम जानते हैं। और नवंबर में इसीलिए तमाम जो ऑटो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो सेल्स जिनके आंकड़े मैंने अभी आपसे साझा किए ये और ज़्यादा होने वाली हैं। और एक बात आप समझिए, जब ऑटो सेक्टर बूम करता है तो आपकी जो रूरल इकोनॉमी है यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक अपटिक देखती है और एक क्रेडिट ऑफ टेक वहाँ से होता हुआ नजर आता है। तो इस पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप जुड़ रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर चर्चा करने के लिए इकोनॉमी टुडे में ब्रेक के बाद हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वेंकेश गुलाटी साहब, उपाध्यक्ष ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। वेंकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो पर जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि जो नंबर्स हैं ख़ास तौर पर बड़े एक्साइटिंग है, खास 10 महीनों की अगर हम बात करें और इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट जो है वो प्रमुख योगदान करता सामने आ रहा है और लोगों की पसंद भी बनता जा रहा है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस मंथ पहली बार हमने इतना बड़ा नंबर इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखा। अगर हम टू व्हीलर की स्पेसिफिक बातें करें, हमने कुछ 1,40,000 के आसपास, 1,39,000 के आसपास गाड़ियां की हैं। और एक ओवरऑल रेशियो में भी 0.6% का बढ़त मिली है हमें। जो एवरेज था लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर में 6.2% था ओवरऑल सेल का इलेक्ट्रिक, इस बार 6.8% है। ये एक बहुत बड़ा ऐसे कहिए एक अपटिक है और एक ऐसा क्लियर इंडिकेशन देख रहा है कि किस तरफ टू व्हीलर्स फ्यूचर में जाएंगे। जब फेस्टिव जहां पे भी रूरल की तरफ से या भारत की तरफ से एक ऑस्पिशियस ओकेजन पे सेल्स की बढ़ोतरी देखी जाती है, उसमें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का रुझान ज्यादा दिख रहा है, इट मीन्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड अब रूरल से भी आने लग गई है। और टू व्हीलर इंडस्ट्री मेजरली अगर हम देखें तो 60% रूरल पे बेस है। तो ये हमारे लिए फ्यूचर बहुत सही है। और मंथ ऑन मंथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स जो है वो एक अच्छे फिगर्स में आगे जाएंगे। इसके साथ एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इवन पैसेंजर व्हीकल में भी इस बार हमने नंबर्स अच्छे किए हैं। वो बात अलग है कि अगर वो एब्सोल्यूट नंबर पे बात करें बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पिछले अक्टूबर में हमने कुछ 7,500 गाड़ियां की थी। इस बार हमने 10,000 का आंकड़ा क्रॉस किया है, जो 40% ग्रोथ बताता है। तो इसका मतलब ओवरऑल ही चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, दोनों में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का रुझान इस बार ज्यादा देखने को मिला है।
वेंकटेश साहब, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की एक अपटिक की बात कर रहे हैं तो रूरल इकोनॉमी भी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि दोपहिया वाहन जब भी प्रोग्रेस करते हैं तो उसका सीधा इंडिकेटर रूरल इकोनॉमी में बढ़त का एक बहुत बड़ा साइन है। कितना इम्पोर्टेंट आप इसको मानते हैं आने वाले सालों के लिए, और ख़ास तौर पर अगला जो महीना है, या अगर नवंबर दिसंबर की हम बात करें तो वो शादियों का सीज़न माना जाता है? जी देखिए, टू व्हीलर जो है इंडिया में एक रूरल इकोनॉमी का डायरेक्ट इंडिकेशन है। जब भी टू व्हीलर की ग्रोथ अच्छी होती है, क्लियर होता है कि रूरल में परचेजिंग पावर बढ़ रही है और उनकी जो अर्निंग्स है वो भी बढ़ रही है। इस बार अगर मैं टू व्हीलर की अगर फिगर्स की बात करूं तो टू व्हीलर हमारी एक्सपेक्टेड है कि करीब फेस्टिव टू फेस्टिव बात करूं तो लगभग 12-13% की ग्रोथ पे जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है जो कि एक बहुत सॉलिड बेस पे है। पिछली बार हमने ग्रोथ देखी थी जो डबल डिजिट ग्रोथ चल रही थी, और कोविड के बाद लास्ट ईयर एक तरीके से बेस्ट था और जनवरी से अभी तक भी अच्छा चल रहा है। वो जो स्ट्रीक है जनवरी से अभी तक की वो आगे बढ़ रही है, और पहली बार टू व्हीलर ने इस बार लगभग 20 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें आइस और ईवी बोथ है। बहुत क्लियर है, और इसमें रूरल का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ गया है। पहले से लगभग 3% रूरल का परसेंटेज बढ़ा हुआ है। और टू व्हीलर 100 सीसी बाइक्स, 125 सीसी बाइक्स और जो स्कूटी हम लोग जिसकी बातें करते हैं वो एक क्लियर रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम हमारे विलेजेस की, हमारे सेमी अर्बन एरियाज की, जहाँ पे मेजरली लोग अपने दुकान आने जाने या ऑफिस आने जाने या डेली कोर्स के लिए यूज करते हैं। और उनकी तरफ से ग्रोथ जो इस बार दिखी है, जो हमें इस मेजर अपटिक दिखा है, वो सामने आ रहा है। बल्कि एक्चुअली बात करें तो अक्टूबर टू अक्टूबर लगभग 37% ग्रोथ पे है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। वो बात अलग है, फेस्टिव जब हम पूरा निकालेंगे, नवरात्र से धनतेरस, पिछले साल का इस साल का, तो लगभग 13-14% ग्रोथ आएगा। जी। तो बहुत क्लियर है इस बारे की। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप इस पर रोशनी डालें। अभी मेरा हाल ही में यूपी मुरादाबाद जाना हुआ, मैंने वहाँ देखा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो स्कूटीज़ हैं वो महिलाओं की पसंदीदा सेगमेंट में आ रही हैं और ऑफिस वर्कर्स उसको काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। वजह माइलेज है, ईंधन में जो खपत की कमी है वो तो है ही, बट एक स्टाइल स्टेटमेंट भी है। ये कितना बड़ा फैक्टर आप मानते हैं ऑटो इंडस्ट्री के लिए, अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब पहले सिर्फ स्कूटर हुआ करते थे एंड कुछ 1989-90 में बाइक्स का एकदम से प्रचलन आया था, जब 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक आया था, तो बाइक्स ने एक तरीके से ओवरटेक कर लिया था स्कूटर्स को, और लगभग 60-70% मार्केट शेयर बाइक्स की हो गई थी। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से दोबारा वो स्कूटी या स्कूटरेट का क्रेज वापस आ गया है। और आज की डेट में मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो सबसे ज्यादा स्कूटरेट या स्कूटीज बिकी रही हैं, बल्कि इवन आइस में भी अब स्कूटरेट और स्कूटीज की डिमांड बढ़ गई है। इसका क्लियर इंडिकेशन आपको दिखता है टॉप 2 जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके फिगर्स देखिए, जितना पास आते जा रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरर के पास उनकी जो स्कूटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से जो कस्टमर की डिमांड अब ओवरऑल स्कूटर्स या स्कूटी के फायदे की वजह से, उनके लुक्स की वजह से, उनकी यूटिलिटी की वजह से, उनके बेटर एवरेज की वजह से अब उस तरफ उनकी प्रेफरेंसेस जा रही है, जो मार्केट में बहुत क्लियरली दिख रहा है। बिल्कुल, मुझे याद है मेरे फादर के पास वेस्पा का स्कूटर हुआ करता था, और उस वक्त वो हमें लगता था कि दुनिया की सबसे नायाब हम कह सकते हैं मशीनरी है। बहुत बहुत शुक्रिया वेंकटेश जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने महत्वपूर्ण विचार इस मंच से साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में इस वक्त जो टू व्हीलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उछाल के साथ मार्केट में है, और साथ ही साथ अच्छे डिज़ाइन और बेहतरीन फीचर्स के साथ। लेकिन एक और फीचर है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, जो कि बात है सेबी से जुड़ी हुई। सेबी ने एक नया प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव ये है कि जो सिक्योरिटाइजेशन है जब वो की जाती है तो उसमें अब 1 करोड़ का न्यूनतम निवेश और डीमैट फॉर्म ज़रूरी है। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स को अधिकतम सिर्फ 200 निवेशकों तक ही सीमित रखा जाएगा। अगर ये जो सीमा है, यानी कि ये निर्धारित सीमा पार होती है, तो इसे आईपीओ का रूप मानना होगा, और आईपीओ 3 से अधिकतम 10 दिन तक खुला रहना चाहिए। आखिरकार ये
सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या? ये निवेश करने वाले निवेशकों को उनके कर्ज के पूल के प्रदर्शन के आधार पर अच्छा रिटर्न देते हैं। अच्छे रिटर्न्स की संभावना इसमें होती है और वर्तमान नियम जो कह वो ये हैं कि 2008 का जो रेगुलेशन है और आरबीआई के 2021 के दिशा निर्देशों पर आधारित हैं। और सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये नए नियम जो तैयार किए जा रहे हैं उसमें आप भी अपने सुझाव 16 नवंबर तक दे सकते हैं। और वक्त तो चला कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले कारोबार जगत की कुछ अहम खबरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बैंकों से देश के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो के लिए आवेदन मांगे हैं। NHAI भविष्य में राजमार्गों को फिजिकल टोल प्लाजा फ्री करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। इस टोलिंग सिस्टम में वाहनों के डेटा के आधार पर बैंकों से पैसे काटे जाएंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अक्टूबर में अपनी स्थापना के बाद से अब तक के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्ज किया है। NMDC ने इस बार करीब 4 मिलियन टन का उत्पादन और करीबन इतने ही लौह अयस्क की बिक्री करते हुए पिछले अक्टूबर के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन में 3.8% और बिक्री में करीब 17% की बढ़ोतरी हुई है। गूगल कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने बताया कि कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर में कोडिंग के लिए AI का 25% तक इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि AI से नौकरियों को कोई खतरा नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में उत्पादन वृद्धि में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का योगदान 1981 से 1990 में 5% के मुकाबले बढ़कर 1992 से 2023 के दौरान करीब 13% हो गया है। ये भारत में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण को दिखाता है। अनुमानों के मुताबिक ICT क्षेत्र की वृद्धि बढ़कर 2028 में करीब $354 बिलियन हो जाएगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक अध्ययन के मुताबिक देश भर में नवंबर से दिसंबर यानी 2 महीने में करीब 48 लाख शादियां होने की उम्मीद है। इससे 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इस सीजन में देश भर में 35 लाख शादियों से कुल 4.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। केंद्र सरकार के मुताबिक पंजाब की मंडियों में 2 नवंबर तक कुल 90.69 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। इसमें से 85.41 लाख मीट्रिक टन राज्य एजेंसियों और FCI द्वारा खरीदा जा चुका है। धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2320 रुपए में खरीदा जा रहा है। ये मूल्य केंद्र सरकार ने ग्रेड A धान के लिए तय किया है। इस हफ्ते स्विगी, नेवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, सैचुलिटी इंडिया और ACME सोलर होल्डिंग्स जैसी कंपनियां अपना IPO लाने जा रही हैं। इसके जरिए ये कंपनियां 18,534 करोड़ रुपए जुटाएंगी। ये सभी IPO 5 से 7 नवंबर तक रिटेल निवेशकों के लिए खुलेंगे।